9 रबीउल अव्वल को, ठीक 9 है। بھی ہے, 12 کی روایات بھی ہیں. اچھا میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو محفل ہم لوگ مناتے ہیں، محفل میلاد کراتے ہیں، وہ سارے 12 کو ہی کیوں کرواتے ہیں؟ نہ 9 کو کرواتے ہیں، نہ 10 کو کرواتے ہیں، نہ 8 کو کرواتے ہیں، یہ 12 کو کیوں کرواتے ہیں؟ شرک جس دن مرضی کر لو بھائی، شرک کا کوئی دن مقرر ہے؟ کیا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کہیں منایا تھا اپنی پیدائش کا؟ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ نے اس دن پر کوئی کیک کاٹے تھے؟ کہا تھا کہ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ؟ تھا کہیں ایسا؟ نہیں تھا. یہ شرک ہے، بدعت ہے، اسلام میں اضافہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ جن کی جوتیاں اٹھانے کے قابل ہم لوگ نہیں ہیں، ہم ان کی جناب وہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو لکھ رہے ہوں، بڑے بڑے کیک آگے ناچ رہی ہوں، ڈانس کر رہی ہوں لڑکیاں. اس طرح کی یہ آج بدعات چل رہی ہیں. خاص طور پہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے، ان کے علماء کو بھی یہ شرم نہیں آتی کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنے بچے کی کوئی سالگرہ منائی، کسی بچی کی سالگرہ بنائی؟ یہ جی ہماری محبت ہے، یہ جی ہماری محبت ہے. کیا حضور کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے گزرے ہوئے انبیاء سے محبت نہیں تھی؟ کیا حضور نے فرمایا کیا وہ حضرت عیسیٰ کی سالگرہ مناتے ہیں؟ جب بھی تھی، کبھی نہیں کہا. اس لیے یہ بدعت ہے، اسلام میں اضافہ ہے. ہاں طریقہ کار یہ ہے، چلو جو 12 کو سمجھتا ہے وہ 12 کو کر لے، جو 9 کو سمجھتا ہے وہ 9 کو کرے. کرنا کیا ہے کہ اس دن تہجد کی نماز پڑھی جائے، حضور کی سنت پر عمل کیا جائے، پھر اس کے بعد اکٹھے ہوں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اکٹھے مل کر ناشتہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، نمازوں کو اس دن اپنے سجدوں کو گیلا کر لیں، ترک کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس پاک نبی کی جو خلق العظیم تھا اس سے ایک چھوٹا سا ذرہ بھی ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے کافی ہے. اس لیے ہم ان بدعات میں نہیں پڑتے. 9 ہے یا 12 ہے، ٹھیک ہے، انبیاء کو اپنی جو ہے نا وہ نہیں پتہ تھی تاریخ پیدائش صحیح طریقے سے، نہ حضور نے کہیں بتائی. حضور نے اسی لیے نہیں بتائی تھی کہ میرے بعد جب یہ گمراہی کا زمانہ آئے گا نا تو اس وقت لوگ شاید مجھے اس طرح پوجنے لگے، کیونکہ ہندوؤں سے بھی حضور کو پتا تھا کہ یہ بریلوی قوم آئے گی اور یہ لیٹی مورتی کو پوجنے والی قوم. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جی اگلا سوال قبور بھائی. جی اگلا میں بھول گیا، طلعت جی میں بھول گیا، میری غلطی یہ ہے کہ میں نے لکھ کے نہیں رکھے سوال نا. شرک کرتے ہیں نا، شرک کرتے ہیں تو پھر بھول گئے ہو. نہیں اچھا طلعت بھائی، دوسرا یہ تھا کہ ابھی جو بتا رہے تھے نا نادر بھائی، جو قبرستان تھے آپ کے نا، جو احمدیوں کے قبرستان ہے نا، بیسیکلی میرا تعلق لاہور سے ہے، اور لاہور میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے زیادہ تر جو دوست تھے نا وہ احمدی ہی تھے، ٹھیک ہے. چونکہ وہ میرا ان سے پیار محبت اتنا تھا کہ وہ ان کی صرف یاری دوستی جو غیر احمدیوں سے نا وہ صرف میرے ساتھ ہی ہوتی تھی، باقی کسی کے ساتھ نہیں تھی، ٹھیک ہے. اکثر وہ مجھے نا وہ اپنے جو نا عزیز و اقارب کے نا وہ قبرستان لے جاتے تھے، ویسے دکھانے کے لیے، یار ہم نے قبرستان جانا چلا تو یہ دکھانے لے کے چلے. تو واقعی آپ لوگ کے جو قبرستان تھے نا وہ بڑے، مطلب آپ کہہ لیں کہ بڑے سیکھوں سے بڑے صاف ستھرے قبرستان تھے، پتہ چلتا تھا کہ یار بندہ کسی جگہ پہ آیا یار. جزاک اللہ. چلے ابھی کوئی اگر سوال نہیں ہے، یاد نہیں آ رہا تو پھر زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہم جی ٹھیک ہے ہو گیا. بیٹھے رہو ساتھ بیٹھے رہو. میں بیٹھا ہوں، میں میوٹ لگا کے بیٹھا ہوں سر، میوٹ لگا کے بیٹھا. جانا نہیں کہیں، جانا نہیں. چلیں جی، یہ میں نے تصویر لگائی تھی وہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید صاحب کی، جی بہت اچھا کیا. جنہوں نے کبھی نہیں دیکھی تو دیکھ لیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول کرے، ان کی شہادت کو. اور دیکھ لیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے جو شہید ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، کہ ہر احمدی کے دلوں میں یہ آج بھی یہ زندہ ہے ہمارے لیے. اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج بھی احمدی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے.
माशाल्लाह गनी भाई, अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए कि बहरहाल अभी फ़िलहाल मज़ीद हम दोस्त हैं। ये इमाम के क्या नाम लिखा है भाई का? अस्सलाम वालेकुम। जी, आपने मौजू लगाया था कि मिर्ज़ा कादियानी की कुतुब से कोई भी एतराज़ करें किरदार पे, जी ऐसा ही है ना जी? जी जी, जो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी किरदार पर और होता था ना एतराज़, था उस तरह का। जी जी। अच्छा, वो पहले आप बिदअत के ऊपर बात कर रहे थे। ये जो आप सालाना जलसा करवाते हैं, ये साहबा ने करवाया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया था? और ये जो आप चंदे लेते हैं, फिक्स चंदा, और जिसको आप इस्लाम का नाम देते हैं, ये भी ज़रा बताइएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फ़िक्स चंदा लिया था जिसको आप इस्लाम का नाम दे के फ़िक्स चंदा, जबकि इस्लाम में तो ज़कात है? एक ये बात, ठीक है जी। दूसरा मैं एक पेश गोई है, एक एक ना कर लें, पहले सवाल का दूसरे का। चलें जी करें जी। और ज़रा ना बिदअत की तारीफ भी जो है ना वो ज़रा, चंदों बल्कि आपसे क्या पूछनी है, आपका वैसे क्या ताल्लुक, वैसे आप कर लें। ये बता दें कि ये साहबा से किया था, साहबा ने सालाना जलसा, और फिर उसमें ये जो बाकी मामला बात, चलें ये ज़रा करें, ज़रा इस पे बात जवाब दें। ठीक है। अच्छा, बात यह है कि सबसे पहले चंदों की बात करते हैं। चंदा जो है वो एक निज़ाम के तहत लिया जाता है, यानी एक निज़ाम जब बनता है तो उसमें लिए जाने वाले पैसे को चंदा कहते हैं। चंदा ये नहीं है कि सिर्फ जमात अहमदिया ले रही है। मैं ये नहीं पूछा कि चंदा किस में आप सर्फ करते हैं, ये जो फिक्स चंदा किया हुआ है आपने फिक्स, भैया अब आपने सवाल कर लिया, इसका जरा जवाब देना है, और इस्लाम से इसकी असल दिखानी है, जरा असल इस्लाम, दिखानी है। हाँ, इस्लाम में चंदा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लिया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा लिया और लोगों को तलकीन की कि चंदा लाओ। आज भी मस्जिदों के बाहर चंदा लिखा हुआ होता है, आपकी मस्जिदों के बाहर भी होगा, जो कि मस्जिद कभी ज़िंदगी में तामीर ही नहीं होती। सारी ज़िंदगी हम कई दफ़ा पाकिस्तान में बचपन से देखते आए, आज भी जाओ तो वो मस्जिद का चंदे की वो मस्जिद ही नहीं वहाँ बन सकी। तो ये एक ना निज़ाम के तहत लिया जाता है चंदा। जमात है एक, उसमें अकायद हैं, उसमें फिर एक निज़ाम है। ये चंदा निज़ाम को चलाने के लिए, उस निज़ाम को चलाने के लिए जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की, मिसाल के तौर पर अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि खलीफा या आने वाला महदी ये चीज़ें कर सकता है, क्योंकि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई तरावी, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऐसा होना कोई गुनाह वाली बात नहीं, कोई बिदत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए तरावी इकट्ठी नहीं पड़ी जाती थी, लेकिन हज़रत उमर के दौर में ये उन्होंने, क्योंकि लोग थके हारे आते थे, तो उन्होंने इसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस पर किसी को इतराज़ नहीं। इसी तरह हमारा जो चंदा है, अगर इसको लिया जाता है और जमात इसको लेती है एक निज़ाम के तहत, तो इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है, ना कोई भाई ऐसी वो कोई निज़ाम, अब सवाल का मेरे जवाब नहीं दे रहे आप। जी, सवाल क्या है? मैंने सवाल कहा कि जो ज़कात है, ज़कात ज़कात भी होती है जो हमारे है दिमाग में। जिसके ज़कात भी है। ऊपर वाजिब हो जाती है वो देता है, और तमाम असराफ के बाद, तमाम अपने मामलात को मुकम्मल करने के बाद जितना उसके पास बचता है उसके ऊपर ये चीज़ दी जाती है। अगर नहीं बचत होती तो उसके ऊपर ज़कात भी वाजिब नहीं रहती। लेकिन आप लोग फिक्स चंदा और उसको इस्लाम का नाम देते हैं, ये सबसे बड़ी बिदात तो ये है। बात और यह है आपने कि अभी तक हम कोई ना- हवाला नहीं दिया हम कि ना नबी चंदा- सल्लल्लाहु ने इसको फिक्स करने का, ज़कात का दूसरा नाम चंदा नहीं, फिक्स, मैं कह रहा हूँ जो कि आप अगर ये 10% बिदअत ईसाइयों मानी वाला जाए, तो लेते फिर हैं, इसको हज़रत उमर इस्लाम वाली से साबित बात कर की तो दे, बिदअत मानो ना। हजरत उमर साबित ने कर बिदअत दे। की थी, हजूर ने नमाज, कभी तरावी की नमाज हजूर ने इकट्ठी पढ़ाई थी? मुझे बताओ फिर ये। तो हजरत अभी उमर तो ने आप नाउज़ फतवा बिल्लाह, लगा अगर के आप हटे हो ये कि कह रहे हो साहबा ने दूसरे मिलाद किया था, कायदों में कि साहबा ने हजरत मिलाद उमर ने किया था, बिदअत अभी की तो आप है, बिदअत ये का कहना शिरक का चाह रहे फतवा हो ना, लगा ये के मत हटे कहो हो। ना, ऐसा ना कहो ना। ये एक निज़ाम के तहत है, मैंने आपको पहले फंस बताया है। गई जान जमात में दो शिकंजे तरीका है, अंदर। एक निज़ाम है और दूसरा निज़ाम के हटकर एक अकायद के ऊपर बेस्ड बातें हैं, दीन की बातें हैं। ये जो बाकी रहा जलसे की बात, ये हो गया आपका, मैंने चंदे का बता दिया। अब जवाब इसमें तो पानी हुआ में नहीं मदानी है, आप डाली वो जाओ, दीन की बातें घुमाई जाओ। हैं। अब किसी जवाब अहमदी नहीं को है कोई तो मेरी इतराज बात नहीं। भी काटनी हजरत शुरू, अबू बकर सिद्दीक को कोई अब इतराज नहीं मेरी था। भी बात अबू काटनी जान शुरू को, कर अबू दी है। लाहब को, दोनों को इतराज था। भाई तो वो अबू जान और अबू लाहब का क्या इतराज है? हजरत अबू बकर घर का सारा सामान लाए, आधा लाए, आप वो इतराज चलो कर रहे हो मेरी ना।
अब अब मेरी सुन ले आपने एक बात। सवाल किया, उसका जवाब लो। एक मैंने शख्स आपको उसका ने जवाब दे मिलाद दिया, के आपको ऊपर पसंद सवाल नहीं आया। किया, आप कह दो मुझे एक शख्स पसंद ने नहीं आया मिलाद भाई। के ऊपर सवाल किया, हाँ, इन्होंने कहा इसमें क्या बिदअत है, शिरक शिरक है, क्योंकि इसमें सहाबा ने क्या नहीं शिरक किया। है? इसमें क्या अब शिरक खुद है? जो अब खुद जो है हजूर ने अब चंदा खुद दिया था साबित कि नहीं नहीं? कर सके, नबी और पाक खुद कहते सल्लल्लाहु अलैहि हैं वसल्लम ने कि नबी चंदा दिया था कि सल्लल्लाहु नहीं? ने ये बताओ। तरावी ऐसे नहीं पढ़ाई थी तो हजरत उमर ने पढ़ाई है, तो इसका मतलब उन्होंने शिरक किया, बिदअत की। मैं नहीं कह रहा ये तुम शिरक लोगों किया। को तो ये भी एक नहीं दीन पता, का लोगों को काम इधर था, फतवा देने उन्होंने बैठ जाते हो, लोगों की सहूलत के जबकि लिए हजरत उमर जो रजी थके ताला अन्हु हारे कहते हैं ये कितनी अच्छी बिदअत है, बिदअत हसना, हजूर जिसकी उन्होंने असल मौजूद हजरत हो, उमर ने जिसकी हजरत असल उमर मौजूद ने हो। मेरी बात आप सुन के लोग चलो। मीनार हजरत का उमर मस्जिद ने अपनी जो इबादत गाहें मर्जवाड़े हैं, उसके मीनारों का चंदा भी आप बाहर के मुल्कों में लेते हो, वो दीन समझ के, स्वाब समझ के लेते हो, बिदअत करते हो। झूठ ना बोली जाओ, झूठ साहबा ना ने तो नहीं दिया, झूठ ना साहबा ने तो बोली नहीं मीनार जाओ, बनाए थे, तुम क्यों झूठ ना बनाते हो बोली मीनार? जाओ, झूठ ना बोली जाओ, खैर झूठ ना बोली जाओ। खैर अब आते हैं अब वो आओ, आपकी अब वो आओ जो वो अकायद लोग के सुन ऊपर। लेंगे, वो लोग सुन लेंगे, सुन लिए वो सारे। जलसा बताएं सारे जी, जलसा अहमदियों को नबी पता है, सल्लल्लाहु ने सारे अहमदियों ये को पता लोगों है से भाई। चंदा लेके जलसा किया था। ये जरा हाँ, बताना, जलसा लोगों से चंदा लेके जलसा जलसा किया था, हाँ जी, हाँ जी। ये बताना जरा। और जो मैंने जो जलसे में आपके मैंने होता है पिछले साल वो 70 नबी अरब चंदा सल्लल्लाहु दिया ने था। किया, साहबा ने मैं किया था, 5 दिन जरा वहां रह बताना के आया जरा। हूँ। जलसा सालाना का हमने ये नहीं कहा कि ये जलसा सालाना इसलिए है कि हजूर ने ऐसे जलसे किए थे, वो दीन की खातिर होते हैं, ये कोई ऐसी बिदत नहीं है। आप लोग जो है ना की मुशरिक लोग खातर भाई, भाई आप दीन लोग में है ही नहीं, कब्रों तो की दीन की पुजारी खातर कैसे लोग कर हो, रहे हो? दीन में है कब्रों ही को नहीं। जाके पूजते हो, बैग हाँ? करके कमर निकल के बाहर ये तो आते हो मिर्जा वहां साहब से। कब्र परस्त थे, हवाला मैं दे देता हूँ। चलो पहला इतराज ही कब्र परस्ती पे कर लेता हूँ मैं। चलो मिर्जा साहब कब्र परस्त थे, ये मैं अच्छा, साबित कर देता अब हूँ। बात ये है, ठीक है अब जी। बात ये है, बात सुने, आप अपना पहले तारुफ कराएं, कौन से मसलक से नहीं आपका नहीं, ताल्लुक? आप इल्जाम लगाएं हम पे। अभी करते कब्र हैं ना, किसी को अपना कब्र बताओ तो पूजा, सही, कभी कौन किसी हो, को कौन है? बिदअती, कदम। अपना बताओ। नबी जिया सल्लल्लाहु ने फरमाया जिया था कि हुआ, ये इसका लोग मतलब है क्या है? शिरक के फतवे लगाएंगे और जिया खुद ये मुशरिक ID काफिर चेंज होंगे, और करके आया आपको है। जो है वो खुले काफिर हैं। बदतरीन अच्छा, आसमान के सुनो। नीचे खुले काफिर हैं आप। हाँ, अब मिर्जा साहब कब्र सारी परस्ती उम्र करते तुम्हारी थे, गुजर गई है, सारी उम्र मिर्जा साहब तुम्हारी कब्र गुजर गई परस्त है। थे, और ज़िया हवाला रसूल, दूं सारी मैं। उम्र तुम्हारी गुजर गई है, सारी और उम्र मैं तुम्हारी ज़िया राज रसूल करते नहीं गुजर हूँ, गई। और मैं हाँ, ज़िया कौन? रसूल अमीन ही नहीं हूँ। वो होते तो तुम्हारी जो है वो टांगे कांपती हो। ओए 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 ओए। मैं यार तो सिर्फ आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह आसान मैं है। तो उनका चल भाई आ हूँ। जरा, फिर पता तो लग गया ये भाई, जरा तू ज़िया सुनो, रसूल दा रिश्तेदार ये है। कफन चल चोर आ जरा, मिर्जा फिर साहब, बरेलवी मुशरिक साहब मिर्जा आओ, साहब फिर आओ, कफन चोर आकर अपने जो अकायद है ना कुरान और और हदीस मिर्जा से साहब के साबित करके मुरीद बताओ। कफन चोर हैं। चल फिर नीचे, जब बद कलामी शुरू करनी, चल फिर थले बैठ। अकायद पर अगर बात करनी है तो दोबारा डाल रिक्वेस्ट, अकायद पर कोई बक बक करनी तो ऊपर आ। तलब भाई इसको लें जरा इसको ऊपर। बद कलामी नहीं करनी, ऊपर आओ, लेकिन बद कलामी नहीं करनी। हाँ जी, देखो तलत साहब, बदकलामी आप करें, एक मिनट, मुसलमानों एक को मिनट, कब्र प्रस्त एक मिनट भाई, कहें, और जब हम भाई, एक कहें मिनट, कि हम एक मिनट आपको यार, कहते आराम हैं से। कब्र प्रस्त साबित ओ करते हैं, तो भाई आप रुक कहते जाओ हैं यार, बदकलामी है रुक ये। जाओ यार, एक मिनट आराम से बात हैं? करो ना, रुक जाओ। अभी मैं माइक लगा लूंगा, फिर आप बोल नहीं सकते, फायदा फिर इधर रोला यार डलेगा, लगा लो, आप भी मसला कोई चीखोगे नहीं है, वहाँ, लेकिन मैं भी तमीज यहाँ के से दायरे में बोलूंगा, फिर रहूंगा। आप भी चीख। ऐसे ऐसे इल्मी बात नहीं होती ना, ऐसे इल्मी बात नहीं होती, आराम से बात करते हैं। पहले भाई थोड़ा सा अपना मसलक का तारुफ करवा दो, किस मसलक से भाई? मकतबा फ़िक्र। मैं मसल के आला हजरत सुन्नी हनफी बरेलवी अहले सुन्ना व जमात। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मेरा आपसे भाई से ना एक छोटा सा सवाल है, अगर आप बुरा ना मनाओ यार। नहीं, ये सवाल तो आपने लेना है, वो आपके आला नीचे हज़रत लिखा हुआ है सुन कि तो लें कुतुब ना। पर वो एतराज़ात सुन तो लें, करें। मेरी बात तो सुने। आप कर लेना, सवाल क्या एक करने सवाल हैं भाई, आप कर सवाल तो लेना मेरे हमारे भाई। हैं। फिरकों की हाँ दुकानें कर बंद, लेना, डैमेज हैज बीन डन। वो कर लेना मेरे भाई। 2 कर लेना, 3 कर लेना। मेरा एक छोटा सा सवाल है यार, हाँ आपके जी, आला हज़रत साहब ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को काफिर लिखा है। हवाला आप दे दें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को आला हजरत अली रहमान ने काफिर लिखा है, हवाला दे दें। चलो ठीक, अगर मैंने हवाला दिखा दिया तो उन्होंने कहा है कि जो मिस्टर जिन्ना के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। यार हवाला तो लगा दें। चले मैं लगा देता हूँ। वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लोगों को से जो है काफिर वो बोलते हैं, मुसलमान कायदे बोलते हैं? आज़म, ये सुन लें जी तमाम लोग कि आला जी हजरत अली रहमान मुजद्दिद जी, दीन व मिल्लत चले मैं ने हवाला कायदे मेरे आज़म सुने रहमतुल्लाह अलैह मेरे के भाई, ऊपर कुफर का फतवा दिया मेरे हुआ है भाई जी। हवाला सुन तो चले लेना जी, यार, हवाला खप लगाए, ना डाले, हवाला एक मिनट, खप लगाए ना ना, डाले मेरे चलो भाई। मैं वैसे ही पहले वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उन्होंने लिखा है कि जो मिस्टर जिन्ना के कुफर में शक करे वो भी काफिर है।
आप जी ठीक कायदे है, आप आजम के हवाला बारे में लगा बता दो, दें, आप उनको मुसलमान समझते हो हवाला काफिर लगा समझते हो? दें, हवाला लगा दें, फिर अगली बात करें ना। मैं आपसे हवाला तलब कर रहा हूँ। सर मैं ये पहले मैं लगा रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ मेरे जिम्मे हवाला। मैं आपसे ठीक पूछ है, रहा आप हूँ लगा कायदे दें। आजम को। मैं इनकार करता हूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ऐसा कोई हवाला नहीं है कि आला हजरत अली रहमान ने उनके ऊपर फतवा लगाया हो। ले आओ हवाला, अगर नहीं सच्ची नहीं, होने मैं तो पूछ मिर्जा रहा हूँ साहब का आप हवाला कायदे है आजम कि को। झूठ बोलना गू एक खाने के मिनट, बराबर मैं है। ये नहीं पूछ रहा, और मैं ये नहीं मिर्जा पूछ रहा, साहब मैं का ये ही नहीं कह फतवा रहा। है कि कंजर और भाई वल्दुल मैं ये ज़िना नहीं कह रहा, वो मेरी भी बात शर्म तो पाते हैं सुनो। झूठ बोलते हुए। मैं आपसे लेकिन कायदे आजम के मुतालिक पूछ रहा हूँ, आप उनको मुसलमान समझते हो काफिर? ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, आप मुझसे ना पूछे, आला हजरत का वो फतवा यार लगाएं। आप अगर जो आपने आप कहा कि बताओगे आला फिर हजरत मैं ने हवाला फतवा लगाया। लगाऊंगा देखो ना। मेरे भाई 275 लोग सुन रहे जो हैं। आप अपने मुंह से मिर्जा बताओगे फिर साहब मैं का हवाला फतवा लगाऊंगा। है कि झूठ बोलना गू खाने के नहीं नहीं, बराबर है। झूठ नहीं, कंजर अगर और मैं हवाला वल्दुल ना ज़िना भी लगाऊं, झूठ बोलते हुए अगर शर्माते मैं हैं। हवाला ना लगाऊं तो फिर मैं इन्होंने आला झूठाऊंगा। हजरत अली रहमा का हवाला दिया यार कि एक मिनट उन्होंने यार, आराम कायदे से। आज़म ओ मोहम्मद भाई अली जिन्ना आराम से, का एक मिनट, नाम लेकर एक उनके मिनट यार, ऊपर सुन कुफर तो का लो, फतवा रोला ना दिया ना है। डालो भाई। तो ये ले आए हवाला, यार रोला ना मैदान ना लगा डालो, हुआ है। हवाला में लगाऊंगा ना यार, हवाला में लगाऊंगा। मैं कह रहा हूँ एक मिनट, रोला ना ना डालो यार। मैं मैं पूछ इनकार रहा कर हूँ रहा हूँ, आप मैं इनकार कर रहा हूँ, हवाला लगाओ, मैं इनकार कर रहा हूँ। अगर क्या मतलब? लगाया हुआ ये पूछ रहे ना मैं इनकार कर रहा हूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनका नाम लेकर आला हजरत अली रहमान ने कोई फतवा दिया है, आप ले चले आए। मैं फतवा इनकार दिया कर रहा हूँ, हो, ऐसा एक कोई मिनट सुन ले। फतवा नहीं है। ये इमाम कज़ाब इमाम झूठ साहब, बोलते ओ मेरे हैं भाई एक लोगों मिनट को सुन धोखा लें, देने के सुन तो लिए। लें, मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने। फतवा दिया हो या ना दिया हो ये एक अलग बहस है। आप कायदे आजम को मुसलमान समझते हैं या काफिर, ये मैं पूछ रहा हूँ। देखें, ये 284 लोग हो गए। अभी कह रहा था कि फतवा जी। दिया हो या यार ना मैं दिया हो। दिखा पहले दूंगा, क्या कह रहा ओहो था मैं कि दिखाऊंगा ना आला हजरत ने आपको। फतवा दिया है। ये जी जी, कज़ाब इनकी मैं किज़ब ये बयानी इनकी चेक करें। नहीं नहीं, ये मैं सारा अगर दिन मैं इधर फतवा बैठ के ना झूठ दिखाऊं तो बोलते फिर हैं। मैं किसब अब बयान मैंने नहीं हवाला करूंगा। तलब किया यार है, रोला ना वो ना डालो, मिर्जा एक साहब मिनट। का हवाला है ओ ना कि मेरे भाई वहीं पे रोला घुस ना जाते ना हैं डालो। जहां से मैं निकले होते हैं। यार वहीं पे घुस देखो जाते हैं यार, जहां से बदतमीजी निकले ना होते करो हैं। यार, जब बदतमीजी ना जब करो। मैं किसी आपसे, मेरी बात तो इल्मी सुनो मेरे बंदे के भाई, सामने बात बदतमीजी ना करें तो करो वहीं यार। घुस जाते हैं जहां अब से निकले आला होते हजरत हैं। का हवाला है तो बदतमीजी पर आ गए हो, हैं? नहीं आला हवाला, हजरत का मैं कह रहा हवाला हूँ, है मैं तो इनकार बदतमीजी। कर रहा हूँ, ले आओ हवाला। मैं तो नहीं, इनकार कर मैं रहा पहले हूँ। आपसे पूछ रहा पहले हूँ, आप आपसे नहीं कायदे पूछना, आजम को तुमने कहा मुसलमान समझते कि हो काफिर फतवा, समझते हो? मेरे भाई वो मैं बाद पूछ की रहा हूँ बात है। कायदे पहले आजम। वो जो तुमने बयान दिया है एक उसका हवाला लाओ। मिनट मैं पूछ सच्चे रहा हूँ, हो आप तो बयान हवाला ले लो। लाओ, आप वरना मिर्जा साहब के फतवे के आप कायदे मुताबिक आजम गूं को खाने के एक मिनट बराबर सुन लो है। ना, और सुन तो गूं लो, खा मेरी लिया बात तो सुनो, आपने। आराम से बात करते हैं यार, आराम से बात आराम करते से बात कर हैं। रहा मैं हूँ, वो ये पूछ फतवा रहा ले आए हूँ, मैं ये जनाब। पूछ रहा हूँ, आप कायदे आजम को। नादर शरीफ साहब फतवा ले ये आए। एक मिनट, तलत भाई एक मिनट जरा, मैं दूसरे, पता नहीं शायद इसको ना मेरी आवाज नहीं आ रही, मैं हेड फ्री लगा दूं। अब अगली बात अब मैं करूंगा अच्छा भाई, जी। अगर एक मिसाल के मिनट तौर जरा। पर बात सुने, चलो इसको खत्म कर लेना, एक बात को जो चल रही है। इसको ना एक मिनट आप जरा सिर्फ यार। इतना बता दें कि अगर लिखा हो इन्होंने अपना आपके क्या इमाम मिल्लत हजरत मौलाना, क्या नाम था उनका बुजुर्गों का जो आपके हैं, इमाम अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेलवी, अगर उन्होंने ऐसा लिखा हो और फतवा आपको दिखा दें हम, तो क्या आप कहेंगे फिर उस पर? यार मैं इनकार कर रहा हूँ कि आप किसी बयानी दजल सर, झूठ हम बोल रहे अगर हैं। ऐसा साबित कोई कर दें तो फतवा फिर नहीं आपका है। क्या होगा? फिर अगर आपका फतवा क्या और होगा यार, भाई? अगर मगर नहीं होती, अगर जो है अगर मगर शैतान का रास्ता खोलता है, अगर मगर नहीं होता। एक बंदा इनकार आपका कर रहा ये है, तुम्हारी कहना है बरात कि पे इमाम बैठा आला 300 हजरत, बंदा सुन रहा है, सुने 300 बंदा सुन रहा आपका है, एक कहना बंदा है कि इनकार कर रहा है। इमाम अहले सुन्नत ये वो लिख लेकिन ही वो नहीं नादर सकते। दौड़ गया, नहीं, वो आता जिसने दावा किया है वो दौड़ गया, देख ले। अच्छा आ जाते हैं, मैं हूँ इधर, मैं हूँ इधर। इमाम आला अच्छा जी। हजरत साहेब रहमहुल्लाह आपके जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने ऐसा लिखा ही नहीं, आप ये कह रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं जी लिखा। तलब भाई, अगर अच्छा लिखा हो जी, तो, अगर लिखा हो तो जी तलब भाई, एक आप मिनट दिखा जरा। दें कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर उन्होंने कहा कि ये दायरा इस्लाम से नहीं, खारिज दिखाना है। मेरे भाई, ठीक है। दिखाना हमारी जिम्मेदारी है, ये तो मैं हाँ आपको जी, कह रहा दिखाएं हूँ। आपको। आप ये पहले जी, कायदे आजम के बारे में अपना ईमान बता दो ना, आया वो मुसलमान थे काफिर थे? यार वो बात की बात है। पहले आप सारे दोस्त ना माइक दिखाओ। म्यूट कर लें। आला हजरत ने कायदे आज़म यार मोहम्मद दिखाना अली हमारी जिन्ना जिम्मेदारी है भाई। रहमतुल्लाह का नाम लेकर अगर मैं ना फतवा दिखाऊं तो मैं कुफर झूठा हूँ दिया हो, जबकि मेरे मैं भाई। इनको अगर मैं ना दिखाऊंगा कि दिखाऊं इन्होंने मैं किन झूठा किन के हूँ ना। ऊपर कुफर के यार फतवे आप दिए हैं। रोक ये क्यों रहे मौजू हो चेंज यार? कर रहे हैं अब, एक जबकि एक मौजू था कि मिर्जा साहब जी के जी, ऊपर देख एतराजात एक मिनट, नहीं नहीं, करें। मिर्जा साहब के ऊपर एक मिनट, मैं कह रहा हूँ आप कर लेना यार, मिर्जा लाओ साहब के ऊपर हवाला, कर लेना सच्चे हो सवाल। तो, नहीं तो गूं खाने के बराबर है। नहीं, पहले आप कायदे आजम के ऊपर जो आपका ईमान है वो बता दो, फिर मैं हवाला लगाऊंगा। अगर मैं ना लगाऊं तो मैं झूठा हूं। वो यार, जब आप वो कायदे फतवा आजम, दिया होगा तो जाहिर बात है हम काफिर जानेंगे। ओहो मैं दिखाऊंगा ना आपको, फतवा में दिखाऊंगा वो ना यार यार,
मैं कह रहा हूँ बता तो दिया है कि अगर आप आला पहले हजरत अपना अली ईमान रहमान बता ने दो ना। कायद आज़म ओ, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर फतवा दिया है हाँ मैं तो जरूर दिखाऊंगा, मैं काफिर है। दिखाऊंगा तो यार, भाई मैं आला दिखाऊंगा, हजरत मैं कह रहा का हूँ जो फतवा है उसके मुताबिक जरूर ओ काफिर है। मेरे भाई मैं दिखाऊंगा, अगर मैं ना दिखाऊं तो मैं झूठा दिखाओ हूँ। फिर। आप पहले
آپ اگر پہلے مگر بتا کیا دو آپ ہوتا ہے، اگر یار وہ آپ مرزا پہلے صاحب بھی قائد سارا اعظم دن کو اس سے مرزا انہوں صاحب نے سے بھی یہ جب لکھا پوچھا ہے جاتا تھا انہوں نے یہ لکھا تو ہے وہ میرے ساری بھائی زندگی اگر انہوں نے مگر یہ اگر لکھا ہے مگر کہ اگر جو مگر قائد جو اگر مسٹر مگر جناح کے لوگوں اب نے یہ دیکھیں پوچھا ہے کہ بھائی یار میری آپ بات کے تو جو سنو آرام سے خون بات جاری کرو ہوا نا ہے یہ ایک منٹ معجزہ آرام کس سے کس یہ نے دیکھیں دیکھا ہے؟ وہ اگر مگر یہ بڑا برا پھنسا ہوا ہے یہ نا بھائی دیکھیں بدتمیزی پر آ 300 گیا یہ بدتمیزی کے پر آ گیا یہ کبھی نہیں اس کے باپ تالا نے نہیں لگا اس رہا کا ہے۔ جو روحانی باپ تھا نا اعلیٰ حضرت اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے اس تم نے یہ قذاب لکھا ہوا جھوٹ ہے بولتے ہو، اس نے لگاؤ یہ حوالہ لکھا تو منہ سے اقرار کرو نا اس نے یہ قذاب لکھا ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ مائک نہ جو میوٹ کرو مسٹر سب کوئی۔ جناح کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ قائد اعظم محمد علی وہ جناح لگاتے کو کیوں نہیں حوالہ؟ مسلمان سمجھتے ہو یہ کہا لگاتے اگر کیوں میں وہ حوالہ نہ لگاتے کیوں نہیں حوالہ؟ دیکھیں ہاں میں قذاب حوالہ دجال لگاؤں گا جھوٹ آپ پہ پہلے جھوٹ اپنا بول رہا ایمان ہے۔ بتا دو نا اب اس کو یار پتا آپ ہے پہلے کہ میں حوالہ نہیں ہے، اب یہ کیا کر رہا ہے؟ میں دوں مرزا گا نا قادیانی کی سنت میری پوری جان کر رہا میں ہے، اس کی سنت ایک کے منٹ ذرا مطابق گوں کھا رہا ہے۔ او بھائی آپ یہ کیوں نہیں بھائی بتا رہے کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو مسلمان سمجھتے ہو کافر مرید اتنا بول دو انکار بس کر رہا ہے، قذاب او یار اعلیٰ آپ حضرت کا یہ مرید دیکھیے انکار کبھی کر رہا نہیں ہے، آپ کا ایمان کیا بلکہ ہے تمہارا آپ فتویٰ کا ہے کہ ایمان جس کیا ہے نے قائد نام بھی اعظم نہیں محمد سنا، علی جناح کے بارے میں قائد اعظم مرزا محمد علی قادیانی کا یہ جس دیکھیں یہ کبھی نہیں بتائے گا دیکھیں پکا اس کو کافر پتا ہے، ہے جس نے نام بھی نہیں اس کو پتا ہے کہ اس کا جو امام ہے سنا۔ احمد رضا خان بریلوی اس نے قائد اعظم محمد علی جناح مائک کے کوئی اور اوپر بندہ میوٹ نہ کرے کفر بھائی۔ کا فتویٰ یہ لگایا ہوا ہے قذاب ٹھیک ہے اس کو پتا ہے اس لیے یہ اب اس نے کہا ہے کہ جو بھی طلعت بھائی اس کا ذرا مائک پکڑے میں ذرا بتا دیتا ہوں لوگوں کو نا چلو بھائی ابھی ٹھہر جاؤ۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جو بھی مسٹر جناح کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے اب اگر یہ کہتا ہے کہ جی مسٹر جناح کافر تھے قائد اعظم محمد علی جناح کافر تھے تو یہ پھنسے گا کیونکہ یہ بانی پاکستان کو کافر بول رہا ہے اگر یہ کہتا ہے کہ وہ کافر نہیں تھے تو پھر اس کے امام کے فتوے کے تحت یہ کافر ٹھہرے گا اس لیے یہ اس کے بارے میں بتا نہیں رہا میں سے پوچھ رہا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح تمہاری نگاہ میں کافر تھے مسلمان تھے آپ بتا دو حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے جی، آپ بتاؤ میری جی نظر میں وہ مسلمان تھے۔ لائیں جی حوالہ اعلیٰ حضرت کا۔ چلیں ٹھیک ہے اب دیکھیں جی اب یہ خاموش ہو اپنے امام کی نگاہ میں کافر ٹھہرا اب میں حوالہ آپ کو دیتا لائیں ہوں جی یار حوالہ لائیں جی جی، جی اعلیٰ حضرت کا لے حوالہ جی لانا ہے۔ جی ٹھہر جاؤ بھائی ٹھہر جاؤ۔ اچھا کوئی اگر لے جی احمدی ہم بھائی نے مانی بھائی کے علاوہ ہیں تو پلیز ہم ایک آدھا نے نیچے چلا جائے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کا ایک فالوور اسی کے فتوے کے مطابق کافر کر دیا یہ لیں جی ایک منٹ چلیں جی حوالہ لائیں، دیتے ہیں ایک منٹ ذرا اور یہ بھی بتانا ہے کہ پھر فتویٰ کی دیتے نا تاریخ کون خاموش سی ہو تھی۔ جائیں ہاں جی چلیں جی ہاں لائیں جی سارا فتویٰ لائیں، فتویٰ دکھائیں گے آپ کو یار ایسی کیا بات ہے یار ایک منٹ نیچے ذرا نہ اتارنا پھر مجھے، نہ یہ نہ میں نیچے بتا نہیں، دوں نیچے نہ اور نہیں اتارنا۔ جانا اتارتے بھی نہ بھائی جانا بھی نہ۔ ہاں صبر اب اس کے بعد وہ اعتراض جو ہے نا مرزا صاحب پر وہ بھی میرا لے لینا، لے لیں گے جواب اس کا جواب بھی دے لیں دینا، گے بھائی ٹھیک ہے ابھی سنو لیں گے۔ اچھا کوئی ایک آدھے احمدی بھائی اگر بیٹھے ہیں تو نیچے اگر جا سکتے ہیں، سب سے اوپر جو دوست بیٹھے ہیں اگر احمدی ہیں۔ جی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ آنے لگا ہے، تمام لوگ انتظار کریں جی، ہاں جی آپ وہ فتویٰ آنے لگا ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتاوی رضویہ سے فتویٰ آنے لگا ہے جی۔ جی فتاوی رضویہ سے ہاں جی اعلیٰ حضرت کا فتاوی جو ہے نا ان سے ان فتویٰ کے آنے فتاوی لگا صرف ہے۔ فتاوی چلو رضویہ میں ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ملفوظات سے بھی لے آؤ، جہاں سے لانا چاہتے ہو لے آؤ۔ بھائی اب گھبراؤ نہیں، بھی میوٹ نہیں لگاؤ نا، آپ کو گھبراؤ ثابت نہیں۔ کریں گے کہ وہ کافر انہوں نے لکھا مسٹر جناح کو بالکل اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دکھانا ہے اعلیٰ حضرت۔ یہ دیکھیے ایک منٹ ادھر نہیں طلعت بھائی آپ ذرا یار اس سے آپ- بات کریں میں ذرا نکال لوں حوالہ نکال آپ صرف ادھر آ کے نا مرزا پھر صاحب دیں گے کبھی، گالیاں نہ بھائی دیا پھر کریں، دیں گے، مرزا ٹھہر صاحب جا کہہ دیا بھائی۔ کریں، او بھائی ٹھہر جا آرام نہ، ایزی کیونکہ مرزا صاحب چلو بھائی کہتے اس ہیں سے میں ذرا گالیاں اس سے ذرا بات کریں طلعت باز ہوں، بھائی میں ذرا وہ لکھ رہا ہوں حوالہ صرف مرزا صاحب کہہ دیا کریں آ کے ادھر۔ یار وہ اعلیٰ حضرت کہہ گیا، کوئی بندہ آگے کتا اعلیٰ کر حضرت رہے بول سی کر بھائی، گیا کتا بول کر گیا کتا کہہ رہے سی بھائی، آپ اعلیٰ حضرت کہتے تھے وہ ان کو کتا کہتے کہہ ہیں۔ رہے سی، وہ کتا کہہ رہے سی بھائی۔ بھائی ادھر لیڈیز بیٹھی ہیں اوپر مرزا صاحب نے بھی خود کو کتا کہا ہوا ہے، بلکہ گلی کا سسٹر کتا بیٹھی کہا ہوا ہوئی ہیں اوپر یار، کوئی بھی گالی نہ دے یار یہ اعلیٰ حضرت نہ کرو یار کتا نہ کرو ادھر یار خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے وہ اعلیٰ حضرت کہتے تھے میں سگے مدینہ ہوں میں سگے مدینہ کا کتا ہوں تو جانتے چکر چے کتا کہتے تھے مرزا یہ دیکھ کتا کر رہا ہے یہ مرزا صاحب جانے کے خود کو چکر گلی میں کا کتا کہتے یہ ہیں۔ جانے کے چکر میں چلو بھائی اس کو نا پکڑ کے رکھیں ذرا ایک منٹ ذرا میں نکال لوں یار ایک تو حوالے اتنے زیادہ ہیں کر لو آرام سے۔ اب جانا نہیں بھائی، جانا نہیں ہے،
वो अभी म्यूट लगाओ, नहीं मैं सर्वा से बात जाना करें नहीं तलब भाई, जब जाना, तक ना म्यूट सर्वा, लगा के रखो, म्यूट तलब लगा भाई के जब तक सर्वा से बात बाकी भी जरा टैप टैप करते रहे दोस्त, जरा थोड़ा सा ना इसके और भी साथी आए तलब भाई तलब भाई जरा सर्वा से बात करो। एतराज मेरा कर लेते हैं, सारे भाई, एतराज लेते हैं, पहले एक मुका लीजिए भाई, एक का एतराज मुका ले तुम्हारा, फिर करना और एतराज के जवाब आप देंगे, सारे देंगे इंशाल्लाह, इधर ही हैं हम, जा नहीं रहे। चलो भाई ये सर्वा सिस्टर से बात करें, इनके जो भी सवाल है ना, मैंने इनको कहा था कि अच्छा कि लाइव वालेकुम, हमसे कोई बात कर सकते हैं भाई? ठहरे भाई, ठहरे भी इधर प्लीज थोड़ा सा, एक वो भाई पहले अपने फतवे, अपने इमाम के फतवे के नीचे काफिर मैं होते हैं। मुसव्वर साहब से बात इससे करने आया तलब भाई हूं, इससे मुसव्वर साहब जरा बात हो सकती है? ओ यार वो उतर गई, एक मिनट जरा। सर्वा सिस्टर आ जाए ऊपर प्लीज, आ जाए। अच्छा एक ना वो है, घर सगे नफसे धनी रा परिवरम, आज से गाने कूचा है हम कम तर यार चुप करके बैठ का जा। कुत्ता हूँ। हैं? तो ये तो आला हजरत कहता था मैं मदीने का कुत्ता ये हूँ। हवाला बात मैंने ठीक है पढ़ के यार। मिर्जा साहब का सुनाया है मैंने। यार मैंने आला हजरत का बताया आपको कि आला हजरत कहता था मैं मदीने का कुत्ता हूँ। कूचा है हम कम तरीम, मैं तो ओ कहता भाई गली का मैं तो कुत्ता आला हजरत हूँ। की आपको बात बता रहा हूँ कि आला हजरत कहता था मैं मदीने का कुत्ता हूँ, गली मानते के हो कि नहीं? कुत्तों से भी मिर्जा साहब कहते हैं मैं बदतर हूँ। यार आला हजरत कहता है मैं कुत्तों का कुत्ता हूँ, कुत्तों का कुत्ता वो अपने आप को कहता है, कुत्तों का कुत्ता, कुत्तों का कुत्ता, और कहता है मैं आला नस्ल का कुत्ता हूँ मदीने का। वैसे अगर यमन का कुत्ता हो, यमन का कुत्ता हो, इसको यार पकड़ना जरा, मैं भी जरा माइक लगा लूं, पकड़ना, पकड़ कर रमानी भाई, पकड़ कर उतारा किसने? नहीं इसको लेते हैं, मैं जरा हवाला निकालूं, वो बकवास कर रहा है। मैंने उतारा, चलो भाई मैंने उतारा इसको। नहीं मैं तुझे हवाला देता हूँ, एक मिनट जरा, तू बकवास कर रहा है तेरी। एक मिनट यार, वो बकवास ही कर रहा है, एक मिनट जरा यार। इसका बाकी मैं खामोश रहे यार। इसका ना मैं हवाला जब मैं निकालता हूँ ना, मैं इसको बुलाता हूँ ऊपर। इसके आला हजरत जो इसका फाजिल बरेलवी, वो इसको दौड़ी ना। चलो भाई ये जरा बात करें आप किसी और से। जी जी, वो सर्वा सिस्टर जो आई थी उनको बुला लो यार, मानी भाई उनको बुला मैं लो। आपको कह रहा था हम भी उससे आए बात हुए हैं, करें। हमसे बात कर लो यार। आइए आइए, की हाल है? ठीक हो आप भाई? अल्लाह शुक्र। ए आप मुसव्वर साहब से बात कर रहा हूँ। ओए किसने बता दिया? मुसव्वर है या ओ एक और भाई है यार, क्या नाम है? मुसव्वर, तलत भाई। मुसव्वर तस्वीर बनाता आप हूँ, मुसव्वर हो? तस्वीर नहीं बनती। हाँ जी हाँ जी, मैं मुसव्वर हूँ। ये आ गई तरफ मुसव्वर भाई, सरवा, आप वही सरवा आ गई। मुसव्वर भाई। एक मिनट यार, वो सर्वा सिस्टर से बात करने दो। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। सब ठीक ठाक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं बाजी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है जी। मेरी अपॉइंटमेंट है सिर्फ 1 मिनट में, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि भाई उन्होंने इमाम जो स्टूडेंट साहब हैं, जी उन्होंने बात आपसे चंदे की है, और मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि खाली एक चंदा नहीं होता। माशाल्लाह वक्फे जदीद, तरीके जदीद, मेमोरी चंदा, ये सब चंदे होते नहीं, हैं। इन्होंने जवाब देना था फिक्स चंदा, जो इस्लाम में नहीं है, हाँ जी, हराम और है। देखें, एक सेकंड बाजी को बोलने दो यार, आप 1 मिनट। आपने कहा जी कि हजरत अबू बकर सदीक अपने पूरे घर का सामान ले आए थे, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल, इससे कोई डाउट नहीं। पर भाई मेरे, वो जो सामान लेके आए थे ना, उन पर जोर जबरदस्ती नहीं थी, उनको उनके ऊपर पाबंदी नहीं थी, वो अपनी मर्जी से देना और बात होती है, और बंदूक की नोक पे लेना एक और बात होती है मेरे भाई। और बाजी, हम तो माशाल्लाह आपी- उहदे दौरान की शक्ल ही सब देखते हैं, तब आपी- चंदा मिस हो जाता है। आप ही मुझे सिर्फ एक छोटी सी, आप माशाल्लाह बच्चे होंगे आपके? मैं तो बाजी? खुद बच्ची हूँ अभी, लर्निंग प्रोसेस में हूँ। ठीक है, अपने वालदैन से तो आपका प्यार होगा, अपने वालदैन की कसम खाकर बताएं कि बंदूक की नोक पर आपसे चंदा लिया जाता था। भाई मेरी बात सुने, कंडीशन आपी, होती है कि आपने प्लीज। चंदा देना होता है। आप और मैं एक बात कर लूं भाई, मेरी सीरियस है ना, मैं डॉक्टर के पास बैठी हूँ, मैंने ताला किसी को आपको लेके सेहत दे आई हूँ। बाजी, नहीं, मैं आपको- ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल हाँ। ठीक हूँ। मैं चलो, किसी जिसको भी लेकर आई नेबर हूँ। के साथ आई हूँ भाई, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, 5 बजे उनका टाइम आप ही था। कसम मैं खाती जाए, पहले अपने वालदैन की कसम खाती जाए कि ओके जी, बंदूक अल्लाह की नोक हाफिज। पर आपको कसम चंदा झूठे लिया। लोग खाते हैं भाई मेरे, वो आप लोग खाते होंगे, हम आप ही नहीं आप खाते खाती अल्हम्दुलिल्लाह। जाएं, हम ऐसा अल्लाह नहीं है। रसूल को आप ही मानने आप वाले, झूठ हम बोल नहीं रही हैं। खाते। आप ही जबरदस्त। आप झूठ बोल रही हैं, ठीक है? भाई मेरे, आप माजूद झूठ के बोल साथ रहे हैं। मैं ठीक है जी। पैदाइशी अहमदी हूँ बाजी, मैं मेरे इन्होंने बाप चलो भाई मेरे क्या कहा, कसम कौन खाता है? झूठे खाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया कि ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे। इसका मतलब झूठे थे वो। लानत है यार। अमान ने उसकी तायीद की है, अमान ने तायीद की है इसने, ये बरेलवी ने तायीद की है उसकी के झूठे।
साबित करूंगा। देखें जी, नबी करीम मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला पर भी कसमें खा रहा नबी है। करीम साबित सल्लल्लाहु अलैहि करता वसल्म को झूठा बोलकर गई है मैं तो उसका साबित कर भाई उसकी देता हूँ। तायद कर रहा है। भाई मैं साबित करता हूँ, उसने आपकी जो ठोकी है मंजी उस पे साबित नहीं कर नहीं, दूंगा। मैं वो चंदे ठहर वो साबित नबी कर करीम दूंगा सल्लल्लाहु अलैहि आपसे। वसल्म पर इत्तेहाम बांध कर गई है। तलत भाई नहीं, इसको जरा मैं पकड़े, मैं जरा कितने ये हवाला चंदे दूं। सुनिएगा हैं जरा, जी? बरेलवियों के और सुनियों के कितने चंदे मैं साबित करूं? साबित करूंगा। बोलो, मरने पे चंदा, पैदाइश पे चंदा। एक मिनट बाबा जी जरतश भाई नु बोलन दे। जरतश भाई यार बाबा जी ना किया करो यार इस यार तरह। साढ़े ना गल हो सकती, मुसव्वर साहब नाल गल हो सकती है कि अपने कसम खाने यार बाबा जी ना किया करें इस तरह कसम यार। खाने का बाबा जी तरीका। एक मिनट जरा, बाबा जी एक मिनट जी, जरतश भाई बताएं जरा। हाँ जी, आपके भाई। बच्चा पैदा होता है, उसके कान में अजान देते हो, उसका चंदा। फिर उसकी सुनते होती हैं, उसका चंदा। फिर वो मर जाता है, उसका चंदा। फिर आपकी कुर्बानी की खाले आ जाती हैं, यार उसका चलो चंदा। चंदे छड्डो, मुसव्वर साहब नाल गल कर सुन लें दो तो यार। लेना जी, सुन तो लें, चंदे बता रहा हूँ मैं। खुद गया ओ यार चलो सही जुम्मा है, पढ़ाते छड्डो। हो, जुम्मा पढ़ाते हो, उसके आगे चादर लेके फिरते हो, मांगते हो कि खुदा के नाम पे इस पे डालो, वो चंदा। ईद की नमाज पढ़ाते हो, उसका चंदा। बंदा मर जाता है, उसका कपड़े लेते हो, फ्रूट लेते ओ हो, चलो 40 दिन ठीक हो खाना गया, देते हो, वो ठीक हो क्या गया, है? गुस्सा हुन ठंडा कर लो, गल कर लें दो यार। जियो जियो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब मुसव्वर साहब नाल गल हो सकती है। और कसम उठाते हो, फिर डालो लानत। चंदा ना दे। अरे जो आपको नहीं मुसव्वर साहब गल हो सकती है 2 मिनट के नहीं? हेलो मुसव्वर भाई पहले इससे बात कर ले। मुसव्वर भाई मुसव्वर भाई हैं इधर? बंदा अभी कोई ना उठाए भाई, बंदा अभी कोई ना उठाए, बंदा मैं उठाऊंगा, ठीक है? मुसव्वर हो साहब गया, हवाला लेने गया ये ये कसाब। आ रहा म्यूट ला, म्यूट ला। हवाला इधर ही है, मैं आ रहा हूँ जरा। हवाला हवाला बोली ना ना, दूं तो मैं मैं झूठा लादा हूँ। नहीं। मैं तूने गल कर बीच लेने में दो। बकवास नहीं, करनी है इसलिए जाना तुम्हें नहीं, उतारा वो था। तो ले लो। तुमने बकवास करनी है इसलिए तुम्हें उतारा है। तो तुमने यार गल बकवास कर लें दो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁਸव्वर ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। चलो जी एक मिनट मुसव्वर ने गल मेरे नाल गल कर दे जी भाई। ਮੁਸव्वर ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਸਾਏ ਹੋ? नहीं नहीं, मैं बुझा के। कभी कभी ताड़े वाल आया तक नहीं भाई। नहीं वो नहीं, वो चक्कर नहीं लाया। दरबार पे गई सी तेरी मां। बहरहाल नहीं, वो बहरहाल मुसव्वर और है, वो मुसव्वर मैं तो और है, नहीं जिसकी है, बंदर की तुम्हारा सारी बड़ा तस्वीर है। भाई नहीं है भाई, ये तुम्हारा मुसव्वर भाई नहीं वो है ये। चंदा है, वो चंदा है जो बंदा लेके भाग गई है, उसके पीछे जाओ। बहरहाल मैं तो नहीं है, लेकिन तू वो वे जिदी सकी सिस्टर भज्जी सी ते किसी ने दसिया कि वो भज गई है, ते तू क्या सी यार छाड़ आ जाएगी शाम ਨੂੰ सिगल दवा। वो बेल्जियम च बैठी है। चलो वो खैर। बेल्जियम में मैं क्या एड्रेस तो भी दे नाम देना। चंदा है, इस वक्त शीए नाल निकाह कीता होया। सारे जितने भी थले आए रिक्वेस्टा पाइया ने, उसमें से कोई अहमदी है तो रिक्वेस्ट अपनी डिक्लाइन कर ले भाई। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट डाली है, कोई अहमदी है तो विड्रॉ कर ले प्लीज। कोई अहमदी भाई है? निकाह नहीं किता, मूता करवा रही मुझे है। भी तलत भाई उतार देना, जरूरत होगी तो मुझे भी। हाँ हाँ कोई बात नहीं भाई, एक मिनट, 2 बंदों की भी है, ज्यादा नहीं डालने, ज्यादा लेने दो फिर शोर पड़ जाता है भाई। अगर अहमदी कोई है तो वो रिक्वेस्ट वापस कर ले बस। एक उठाए बंदा ना, मनी भाई देख के कोई गैर अहमदी 2 बंदे उठा ले, ठीक है? एक एक दो अब हवाला नहीं देना आ रहा तो हवाला मेरा आ रहा है, हवाला भाई, किसी भाई, लेके नहीं बैठे, एक कोई मिनट यार, कोई दे बड़ा नहीं देना, हवाला मेरा है। एतराज तो सुन लो। वो दे रहा हूँ अच्छा, हवाला। एतराज एक करते मिनट हैं अभी, पहले एक कल हो जाए ना क्लियर। 1 घंटा हवाला ना दे एक तो मैं मिनट बैठ। नहीं नहीं, वो हवाला हो यार, वो बात एतराज ना कर मिसप्लेस हो सकूं। जाता है। आपको देना हवाला हमारी आपको जिम्मेदारी पता है है ना। कि भाई फंस गई है ओ जहां भाई, शिकंजे हवाला अंदर है। देना हमारी जिम्मेदारी है। ना दो ना दें तो किया, झूठे हैं भाई। आप घंटा लगाओ रुक जा हवाले भाई, पे, तो इतने मैं घंटा बैठा रहूं अभी इधर। मैं तुझे ओ, काफिर, मैं घंटा अभी बैठा मैंने रहूं तुम्हें इधर। काफिर साबित करना है। रुक जाओ यार, चाह रहे हैं, आज भाई रुक घंटा जा बैठे यार रहे भाई। हम इधर। भजना चाह रहे एतराज हैं। तो सुनो ना, मुझसे बात जारी रखो। करते मुझसे करते बात जारी रखो। मेरा ठहर जा, एतराज किसी है और तलब से भाई, करो भाई से तुम्हारे दूसरी साथ। बात करें, तलब मेरा- भाई से दूसरी बात करें। मैं जरा वो नहीं, नहीं, निकाल किसी दूं। और से मिर्जा करते हैं। साहब की दुबर से जो 16 दिन खून जारी ये देखें, अब ये भागना इसको चाह रहा है आपने आज क्या जानी फंस गया। यार। एक मिनट जरा, एक मिनट मेरी बात सुने। कौन इसको उठाता कोई है ना इसको? उठाए भाई, जब मेरे किसने उठाया इसको? वाला ने मेरे पता नहीं इसको किसने पहले उठाया, किसने मैंने उठाया था? अभी कोई ना उठाए इसको भाई। अभी जब तक ये नीचे मरेगा यार और- जब देखें, मेरी बात सुने, हम लोग यहाँ पर जब बैठे हुए हैं, जब आप लोगों को कहा है कि यार जिसको हम उतारते हैं उसको ना उठाएं, तो फिर आप लोग उठाते हैं उसको। वो गाली दे रहा है बार बार, मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बारे में गुस्ताखी कर रहा है, फिर आप उसको उठा लेते हैं यार। नहीं गाली किसने अच्छा नीचे से अभी कोई भी नहीं उठाएगा। एक मिनट मोहम्मद, नीचे से कोई यार, भी ना देखें, उठाए, तलत अब- भाई या नादिर भाई उठाएंगे। ऐसे ना देखें, मेरी बात सुने यार, ऐसे खिचड़ी बनाई हुई है, सारे बंदों ने माइक खोले हुए, ये तो यार तरीकाकार गलत है ना। एक बंदा बात करे, तलत भाई बात कर रहे हैं, तलत भाई से चल। करने दें। जी तलत भाई मोहम्मद बात साहब आपका क्या सवाल है? अपना सवाल करें मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब
मोहम्मद साहब सवाल करो अपना भाई, या किसी गैर अहमदी किसका सवाल है अपना सवाल करो। भाई मेरे कोई सवाल नहीं है, जिसने हवाला मांगा हवाला दो, तुम लोग फंस गए हो बुरी तरह से आज। दे रहे हैं भाई, दे रहे हैं, खैर सब्र तो करो। हवाला बनने लगा है अभी, म्यूट लगा छाप लो। रहा है हवाला। मिटा हवाला दो उस आदमी को दफा करो। करते हैं भाई, करते हैं वो भाई। नादर और मशहूर, जब तुम मरोगे तुम्हारी नहीं यार यार, चुप कर, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम्हारी मुतालिक, मुश्किल- सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात तुम करें। दोनों अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन जान व अला निकले। आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नादर भाई तेरा पकड़ने वाला मैं ढूंढता हूँ। अल्लाहुम्मा बारिक। नहीं मिल गया वाला, माफी मांग लो, माफी मिल मांग गया, लो। मिल गया वाला, मिल भाई, गया। तू तो चुप कर भाई, अपना पान थूक दे भाई। भाई माफी मांग लो, माफी अबे मांग लो भाई हमारे चुप करके बंदे से। माइक म्यूट लगा भाई। अबे भाई तू लियाकताबाद से बोली जा रहा उधर। अच्छा, हवाला ना मेरे सामने पड़ा, मैं इनको थोड़ा सा ना वो चले पक्का दौड़ कर गया, रहा हूँ बंदा उस दौड़ बात के गया, ऊपर। हवाला मेरे सामने खुला पड़ा। बंदा दौड़ गया अब ना, दौड़ गया। नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, आ आ गया। जाएगा। अबे भाई कोई खोले नहीं माइक, अब बाकी सारे म्यूट यार रखे। वो जो गालम गलौज कर रहा है ना, भाई मेरा मशवरा तो यही है, माफी अबे मांग चुप लो। कर भाई, तू चुप कर भाई, तू माफी मांग। मुंह में जुबान ले ले भाई, मुंह के दांतों के नीचे जुबान रख। अरे हवाला दे दे, तेनू हवाला मंगया तू अगों क्यों झूठ ओ यार बोल दे यार? सारे गाली बात। मैं कोई गाल मैं चुप कर सारे- चुप करके सारे म्यूट यार डाला। तमीज- कोई गाली नहीं दवांगा इन्हें पे तुहानू। जो हवाला देता है तो नठेगा देखियो फिर। हुन म्यूट डाला। एक मिनट जरा चलो यार, मैं असल में किताब से ना इनको दिखा रहा हूँ। इन्होंने कहना है ये काट छांट की है। किताब से मैं किताब डाउनलोड करके ना इनको दिखा रहा हूँ। अबे ठहर जो भाई, अभी दिखाते हैं भाई। भाई खुद लिख दो, खुद लिख अबे दो। भाई तू चुप कर जा, तेरा कोई सवाल नहीं है भाई, तू तो चुप कर। और कोई तलब भाई इनसे बात करें, मैं जरा निकाल लेता हूँ वो अच्छा वाला कोई किताब किसी से। दोस्त का कोई सवाल है तो वो कर सकता है कुरान हदीस के मुताबिक, अगर कोई दोस्त सवाल करना चाहता है। भाई माफी मांग हवाला लो, मंगन दे, यार, ਉਹ माफी ਤੁਸੀਂ मांग ਦੇਣ लो, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, माफी मतलब मांग ਤੁਸੀਂ लो। ਝੂਠੇ ਜੇ ਯਾਰ। ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਨਾਦਰ, ਹਿੰਮਤ कर पैना ते पार पा। अच्छा चलो यार, कोई और बात नादर करना तुम्हारा चाहता है हवाला जब तक अकेला नादर तुम्हारे सीने में गड़ा रहेगा, बेशक बेफिक्र रहो। अभी मैं देता हूँ हवाला, क्यों झूठे कजाब तुसी बने फिरदे अभी मैं देता हूँ हवाला, अभी मैं देता हूँ, हिम्मत अभी कर मैं देता हवाला हूँ। तुम सबको ना इकट्ठा बांध दो। माफी मांग लो। नहीं नहीं गल ये नहीं है, हवाला ला क्यों झूठ बोल दे जे? नया पान वाला कसम खुदा की हवाला मैं देता हूँ अभी। ऐसी कोई बात ला नहीं है, तुम फिर लोग कसमा टेंशन। खाने इतने स्क्रीन ते ला दे अच्छा ताकि हवाला गल मुझे नहीं खत्म मिल रहा, हो। गुस्सा इनको आ रहा है। सियाड़ी केड़ी गल है तेना? अबे भाई तेना केड़ी पैड़ी सांझी आ? तू ना और हवाला ला मेरी। यार गालियां क्यों दे रहे हो यार? नहीं नहीं गाली फिर मैं कोई गाल नहीं कड्डी, किन्ने बंदे सुन रहे, एक गाल भी कड्डी होवे तू जो मर्जी कवे मैं डन करना। यार जबान तो अपनी ठीक है। हवाला ते ला। इन्होंने ना सिर्फ मौजू से हटने के लिए किया कि कहीं मिर्जा साहब पे बात ना, इनको इतनी अच्छा जी, शर्म आती है उसके बारे में आप कर लो बात भाई, करने की आप भी। कर लो मिर्जा साहब मौजू पर बात। बदल लेते हैं, ये कहीं फलाह हो गया। भाई आप अब मिर्जा हवाला साहब पर लगाओ, बात कर लो भाई, और झूठे मिर्जा साहब पर नादरा, बात कर। ला वाला। चलो यार आप लगा मिर्जा रहा साहब हूँ पे एक पहले मिनट बात कर लें भाई, हम नहीं जा नादिर रहे तुम कहीं। क्या, तुम्हारा बाप भी आ गया हवाला नहीं, 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 यार, बात ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਡਿਆ ਹਾਲੇ तक। यार देता हूँ एक मिनट जरा यार। उसको उतारा है किसी ने, वो जो वहाँ पीक रहा था, पीकू। अच्छा जी, नहीं नहीं मैंने नहीं उतारा। अच्छा खुद ही फिर चला गया। अबे भाई थूकते हुए नीचे गिर गया क्या? ਐ ਵਾਪਿਸ ਜੁਗਤਾ ਆ ਜਾ। ਨਾ ਮਾਰ ਜੁਗਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। वापस आ जा। तेरा की मकसद है भी तेनू नहीं मारी जी। में? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨੇ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ एक ਜੁਗਤ मिनट ਮਾਰੀ। भाई, खामोश हो ਲੱਸੀ जाओ। जो इधर ਦੀ ਵੜ ਕੇ ਪਾਲੇ ਬੰਨੂ ਦੀ ਨਿਕਲਣ भाई ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ एक ਦੀ मिनट ਦੁਨੀਆ एक बदल मिनट तलब भाई, गई। तलब भाई हवाला एक लाओ मिनट, यार, गल तलब खत्म। भाई, अल्लाह वाला। तलब भाई एक मिनट तो जरा। इमाम अब सुदन जो जो वाला एक मिनट भाई, वापस एक मिनट कॉल भाई, मतलब- भाई एक मिनट जरा खामोश। अब ना जो जो मर्द का बच्चा है और अपने बाप की औलाद है, उसने यहाँ से जाना नहीं है, उसको मैं काफिर साबित करूंगा। नहीं ऐसी का तो जाना। हाँ हाँ जाना नहीं है। मर्द के हवाला बच्चे पहले बता गल दो। इधर उधर ना जो करो, जो हवाला अपने लाओ। जो जो मर्द के अपने बच्चे हो, बाप इमाम की सुदन असल को औलाद वापस है, कॉल उसने पे यहाँ दो। से जाना नहीं है। मैं तुम सबको ना पहले इकट्ठा कर रहा था, इकट्ठा करके मैंने मारना। बुलाओ उसको जरा, वो जो आपका भाई था, वो हवाला ला। स्टूडेंट अब फिर गल तुसी बदलनी, हवाला ला दे। मैं कह रहा हूँ तुम सब ने यहाँ से जाना नहीं है, हवाला जाना मेरे नहीं सामने आ हुन गया। तुम सब ने जाना नहीं है, हवाला मेरे सामने। और बाकी तलब सारे स्क्रीन बड़ी म्यूट कर रहो। रहा ऐसी किते
म्यूट तुम ला लोग लो। ना असल में तुम लोग ना मुझे जानते ही नहीं हो, मैं तुम में से निकल के आया हूँ, कोई मसला नहीं। और नादिर साहब तू कई दफा मुझे मैं सारे जी, सारे मैं खामोश कह हैं, रहा मुझे हूँ इससे बात करने दें, इससे जी। मुझे बात करने दें। इसने जो दावा किया है उसके ऊपर ये दलील देगा। अच्छा ठीक है, ये हवाला लगाएगा। तुमने चले जी, हवाला लगाएं जी। तूने ये कहा है कि मिस्टर जिना यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिना तेरी निगाह में मुसलमान है। तेरे इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने ये लिखा है कि जो मिस्टर जिना के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। अब सुन हवाला, ये ले। नहीं हवाला तुम इधर लोग लगा बड़े- के किताब का असल और ये स्कैन मैं लगा के किताब से लगाओ। दिखा रहा हूँ, किताब खोल के दिखाता हूँ तुम्हें, चलो किताब खोल के वीडियो ऑन दिखाता करो, हूँ। वीडियो ऑन करो और हाँ, हवाला लगाओ, वीडियो- असल स्कैन मैं पेज लगा वीडियो दिखा रहा हूँ, के इधर लगाओ और लगाओ। वीडियो दिखा रहा हूँ भाई। और किताब का नाम बताओ पहले। किताब का नाम भी नाम बताता हूँ। किताब का नाम बताओ। एक मिनट जरा, एक किताब का नाम लो जी। सारे अपनी अपनी जगह पे पहले किताब एक का मिनट, नाम निकाल लें जी। माइक सारे म्यूट गूगल करो ना कर पहले, लें। माइक म्यूट करो पहले माइक म्यूट करो, मुझे पढ़ने तो दो ना, हवाला तो पढ़ने दो ना किताब का नाम ही पहले यार किताब ताकि का- ऐसी भी कटिंग है सन यार किताब एक का मिनट, नाम दिखाए पहले ये वो किताब बता का रहा हूँ, नाम। किताब का नाम बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हारी किताब है, मैं भी मैं कर बता लेना रहा हूँ। इधर तू किताब का नाम दस शोर डालोगे तो मैं कैसे बताऊंगा? रुक पहले तो कह जाओ ना रही एक हवाला मिनट कटे तो यार, जरा एक मिनट, किताब का नाम शोर डालोगे तो कैसे बताऊंगा भाई? खामोश हो जाओ ना, चलो जी। खामोश हो जाओ। हाँ जी, ये लिखा हुआ है जी, बाहुक्म शरीयत मिस्टर जीना अपने उन अकायद कुफरिया, कतिया, यकीनिया की बिना पर कतन मुर्तद और खारिज अज इस्लाम है, और जो शख्स उनके इन कुफरों पर मुतला होने के बाद उसको मुसलमान जाने या उसे काफिर ना माने या उसके काफिर मुर्तद होने में शक रखे या उसको काफिर कहने में तवक्कुफ करे, वो भी काफिर मुर्तद शर्रुल नियाम जेड़ा और तू बे- हवाला लाया ते लिखिया ही नहीं, एते ते लिखिया ही नहीं। मैं दे रहा हूँ, एक मिनट दे रहा चुप कर हूँ, वो दे एक मिनट यार। दे रहा हूँ, थल्ले कर दे भाई, अब दे रहा हूँ ना, अमर दे रहा हूँ मैं तुम्हारी यार, किताब। ऐसे लिखिया ही नहीं किते ओ भी। माइक, हो नहीं रही अमर भाई। यार ये यार, आला हजरत की किताब नहीं है, इसको पढ़ने दे। इसको जब किताब बताएगा इसको किताब हम तुम्हारी बताएंगे। अहले सुन्नत वालों की किताब है। ओ भाई आला तुम्हारी हजरत का अहले फतवा सुन्नत दिखाना है। ये आला देखिए हजरत का आपने फतवा कहा था कोट कि आला किया, हजरत ओए ने आला नाम हजरत का लेकर फतवा, शोर आला डाल, एक मिनट हजरत शोर ने डालो। नाम लेकर कहा है किताब का शोर नाम दिखा। हाथ ये मैं फंस शोर गया, तो फंस आला गया हजरत काफिर, काफिर यार फंस सुन गया। तो जा, और सुन ले ओ भाई, सुन ले फतवा यार, फतवे तो मैं बहुत बता रहा ज्यादा तलब भाई, हैं। यार इसको कंट्रोल करें यार, तलब भाई होस्ट है किस बात के होस्ट हैं तलब भाई? इसको फिर यार तो नीचे उतार। लिया तूने। ओ यार शोर ना डाल, अब तुझे घर से वाला दे रहा हूँ तलब भाई, यार इसको उतारे यार तलब भाई, मैंने कहा कि आला यार तलब भाई कंट्रोल करें यार। नीचे ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ बेटा ਤੁਸੀਂ अभी शोर ना डालो नीचे नहीं यार, उतारना, जिनाब यार नहीं इतने लिखा ज्यादा, हुआ, जिनिया एक लिखा मिनट हुआ जरा, है। जिनाब यार चल थले इतने ज्यादा मॉडरेटर बनाए हुए कोई भी नहीं यार हेल्प करता है यार, चले कोई बात नहीं, वो यार पहले से फायदा मना- मॉडरेटर्स का यार, हमने कोई मना कर मतलब दिया वो था माइक ना, खोल, भाई, हमने मना कर दिया। उनको पता है जब उनकी मौत आई है उन्होंने बोलने नहीं देना यार किसी ने। ये देखें जी, ये पूरा, और ये सिर्फ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर फतवा नहीं है, बल्कि अल्लामा इकबाल के ऊपर फतवा है, मुस्लिम लीग के ऊपर फतवा है। ये देखें जी, पूरे मिस्टर जिन्ना के, अच्छा जी, तर्जुमा रजविया, ये पूरी वो जो तर्जुमा किया हुआ है अरबी के अंदर, पता नहीं उसमें फतवा है। मिस्टर जिन्ना ने हर मजहब व मिलत के काफिरों और मुशरिकों के साथ मोहब्बत व रवादारी को मुसलमानों पर फर्ज और इसी को खिलाफत इलाहिया का मुक्तज़ा बताकर आयत कुरानिया को मुंह भरकर झुटलाया और अपने इस कुफ्र मलून का इफ्तरा कुरान पाक पर थोप कर अलियाज़ु बिल्लाह तबारक व तआला। फिर जब मिस्टर जिन्ना के नज़दीक हर मज़हब व मिलत के तमाम काफिरों और मुशरिकों के साथ मोहब्बत व रवादारी फ़र्ज ठहरी, तो इशात इस्लाम और एलाए कलिमतुल्लाह के लिए जिहाद व क़िताल माअज़ल्लाह हराम ठहरा। तो ये माअज़ल्लाह जो हुज़ूर अकरम सैयदुल कौनैन अला आदाद रब्बिल आलमीन, आगे पता नहीं वो क्या लिखा है, पर सख्त नापाक तरीन हमला हुआ जब मिस्टर जिन्ना ने इस नापाक फतवे से इशाते, यार इसका माइक म्यूट करें यार, किसका इस शोर है पीछे, एक मिनट जरा, इसके नापाक फतवे से इशाते इस्लाम व एलाए कलमतिल्लाह के लिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा किराम व मुजाहिदीन इस्लाम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के तमाम कारनामा हाय जिहाद व क़िताल माअज़ल्लाह सब हराम व नाजायज़ व गलत बातिल ठहरे। तो मिस्टर जिन्ना के इस रिसाले पैगाम का खुलासा भी यही हुआ कि इस्लाम गलत व बातिल है और बेदीनी और लामज़हबी सही व दुरुस्त है। वल अयाज़ु बिल्लाह ताला।
کیا ستم شعاری ہے، اور دیریت پر اسلام کا پردہ ڈال کر اس کی اشاعت کی جا رہی ہے۔ اف، کیسی جفاکاری ہے کہ تعلیم اسلام کے الحاد و بے دینی کا زہر ملا کہ تعلیم اسلام کے شہد میں الحاد و بے دینی کا زہر ملا کر مسلمانوں کے قلوب میں پیوست کیا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے سنیں فتویٰ۔ باحکم شریعت مسٹر جناح اپنے ان عقائد کفریہ قطعیہ یقینیہ کی بنا پر قطعاً مرتد اور خارج از اسلام ہے، اور جو شخص اس کے ان کفروں پر مطلع ہونے کے بعد اس کو مسلمان جانے یا اسے کافر نہ مانے یا اس کے کافر مرتد ہونے میں شک رکھے یا اس کے کافر کہنے میں توقف کرے، وہ بھی کافر مرتد شر اللیام اور بے توبہ مرا تو مستحق لعنت ہوگا۔ یہ جناب یہ اچھا یہ جی کتاب ہے پوری، ان کی کتاب کا نام ہے تجانب اہل سنت۔ میں آپ کو اس کا نا پورا حوالہ دکھاتا ہوں، یہ پورا فتویٰ پڑھ لیں۔ ایک منٹ ذرا، یہ جی پہلے پیج پہ جاتے ہیں جی، ٹائٹل پیج، یہ جی کتاب ہے تجانب اہل سنت عن آل الفتنہ، ٹھیک ہے، تصنیف لطیف، ناصر سنیت، قاصر لا مذہبیت، مناظر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طیب صاحب صدیقی قادری برکاتی دانا پوری علیہ رحمہ و رضوان، ناشر مدرسہ گلشن رضا، کولمبی یا کولمبو، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، ضلع پتہ نہیں کیا آگے، مہاراشٹرا۔ یہ جی وہاں سے شائع ہوئی ہے کتاب، یہ تجانب اہل سنت، آپ یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نقل کوٹ کیا ہے، جو کہ مسلم لیگ کے اوپر، علامہ اقبال کے اوپر اور قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا ہے۔ یہاں تک لکھا ہے جو ان کو کافر کہنے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اب یہ کتابیں بھائی آپ کی چھپی ہوئی ہیں، بھائی یہ کتابیں ہماری نہیں چھپی۔ اچھا یہ لکھا ہوا ہے اس کے عرض ناشر میں لکھا ہوا ہے، یہ کتاب تلمیذ رشید حضور کیا لکھا ہوا ہے، حضور شہر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طیب صاحب قبلہ صدیقی قادری برکاتی دانا پوری علیہ رضوان و رحمہ کی تصنیف لطیف ہے، جس میں یہ مبارک فتویٰ نافع تقوی، دافع بلوا، قاطع تغوا، مسلمان کہلانے والوں میں جو لوگ پتہ نہیں آگے کیا، وہابیت، دیوبندیت، رافضیت، قادیانیت، چکڑالویت و نیچریت، آغا خانیت، احراریت، لیگیت سے مراد نون لیگ، و خاکساریت، بہائیت، کرشینیت، پتہ نہیں کیا کیا آگے کون کون سی، ان سب کے خلاف جو اعلیٰ حضرت کے فتوے نا وہ سارے جمع کر دیے اس کتاب کے اندر۔ لو جی، یہ وہ لوگ ہیں جو بانی پاکستان محمد علی جناح کے اوپر کفر کے فتوے لگا چکے ہیں۔ ان کی اپنی کتاب تجانب اہل سنت کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے اعلیٰ حضرت کا، اور اصل کتاب سے بھی ہم نکال کے دکھا سکتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے بہرحال، لیکن یہ ان کی اپنی کتاب ہے۔ یا تو اس کتاب کے مدیر کے اوپر لعنت بھیجیں بھائی، اس کتاب کے مؤلف کے اوپر لعنت بھیجیں کہ اس نے یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیوں کوٹ کیا ہے۔ ہماری کتاب نہیں ہے بھائی، یہ آپ کی اپنی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 167 پر جائیں آپ، ٹھیک ہے نا، ایک منٹ ذرا، ایک منٹ، صفحہ نمبر 167 کے اوپر یہ جب ان کی موت آتی ہے نا تو یہ لوگ رولا ڈال دیتے ہیں بیچ میں، یہ جی یہ یہاں پر وہ سارا علامہ اقبال کے خلاف اور قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف فتویٰ، بلکہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف نہیں، دیوبندیوں کے خلاف، وہابیوں کے خلاف، چکڑالیوں کے خلاف، پوری امت کے خلاف اس کتاب کے اندر نا فتوے موجود ہیں جو اعلیٰ حضرت صاحب نے دیے نا، وہ انہوں نے فتوے اس کتاب کے اندر اکٹھے کر دیے سارے کے سارے۔ مسلم لیگ کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے، تھوڑا دکھا سکتے ہیں آپ کہاں پر لکھا ہے؟ ایک منٹ بھائی، ابھی تھوڑا میوٹ رکھیں نا، ایک منٹ، آپ کو میں نے لیا ہے، میوٹ رکھیں، جو بھی بولے گا نیچے جائے گا بھائی۔ اچھا، مسلم لیگ کے نزدیک وہی لوگ نام نیاد مولانا ولی بس وہ ہیں۔ اب دیکھیں جی، مسلم لیگ کے بارے میں ہی فتویٰ ہے ان کا کہ مسلم لیگ کو جوائن نہ کرو، اور یہ جو
ہے نا مولانا فضل الرحمان، اس نے جو فتویٰ دیا نا پی ٹی آئی کے متعلق، بالکل سیم فتویٰ احمد رضا خان بریلوی نے مسلم لیگ کے متعلق دیا تھا۔ اچھا جی، لیگ کے نزدیک احکام شریعت کی پابندی و دینداری کا کیا حکم ہے؟ جواب، لیگ کے نزدیک احکام شریعت کی پابندی کوئی چیز نہیں۔ اب یہ لیگ کون سی ہے جی؟ یہ مسلم لیگ ہے۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسلم لیگ ہے یہ احکام شریعت کی پابندی نہیں کرتی۔ اب یہ وہی پارٹی ہے جس نے پاکستان بنایا، مسلم لیگ نے پاکستان بنایا، اس کے متعلق احمد رضا خان بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ احکام شریعت کی پابندی کو ضروری نہیں سمجھتی اور دیندار نہیں ہے۔ یہ ان کے نزدیک ریاکار، وہ لیگ کے نزدیک ریاکار ہوگا، اور آگے پورا وہ سارا بیان کیا ہے، یہ پڑھ لیں۔ اوئے ہوئے ہوئے اتنا ظلم! یہ پوری کتاب جناب پڑھ لیں، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ سنیوں کی کتاب ہے، اور بڑی شد و مد کے ساتھ انہوں نے مسٹر جناح کے خلاف جو کفر کے فتوے تھے نا وہ سارے، یہ دیکھیں پوری مسٹر جناح نہیں، باقی بھی نکل آئے فتوے تو ہاں علامہ اقبال کے اوپر بھی فتویٰ ہے اس کتاب کے اندر، علامہ بھی نکل آئے۔ یہ ہے جی، ہاں پیج نمبر 177 ہے اس کے تجانب اہل سنت، پیج نمبر 177، بحکم شریعت مسٹر جناح اپنے ان عقائد کفریہ و قطعیہ یقینیہ کی بنا پر قطعاً مرتد اور خارج از اسلام ہے، اور جو شخص ان کے کفروں پر مطلع ہونے کے بعد اس کو مسلمان جانے یا اسے کافر نہ مانے، یا اس کے کافر مرتد ہونے میں شک رکھے، یا اس کو کافر کہنے میں توقف کرے، وہ بھی کافر اور مرتد اور شر العام اور بے توبہ مرا تو مستحق لعنت ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، اور بیچارے قائد اعظم، میں تصویر بڑی کرتا ہوں قائد اعظم کی، اے لو میرا قائد، میرا قائد، میرا قائد۔ کیا نام ہے وہ نادر بھائی، وہ ایک سوال دے لیں۔ جس اصول کے مطابق انہوں نے شیعوں کا کافر قرار دیا ہے احمد رضا بریلوی نے، تو قائد اعظم بھی تو ایک شیعہ تھے، تو اس کے مطابق تو ان کی وفات پہ جو انہوں نے فتویٰ دیا تھا نورانی صاحب نے کہ جو ایک منٹ ذرا، ایک منٹ بشیر بھائی، پہلے تو بات کا خلاصہ کر دیں نا۔ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے نا کہ جی حوالہ نہیں ملا بھاگ گیا، لیں جی کتاب موجود ہے تجانب اہل سنت، گوگل پر جائیں، سرچ ماریں، پی ڈی ایف میں نکال کر پڑھیں، یہ آپ کی اپنی کتاب ہے، بریلویوں کی اپنی کتاب ہے، انہوں نے اپنے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فتاویٰ اس کے اندر جمع کر۔ بھائی صاحب میوٹ کر یار، آپ لوگ بولنے تو دیا کرو یار، آپ لوگ اپنی باری پہ جو مرضی بولنا ہے بولو، بولنے تو دیا کرو یار۔ انہوں نے اپنے امام کے فتاویٰ سارے جمع کر کے اس کتاب کے اندر شائع کر دیے، ہم نے نہیں کیا۔ اسی کے اندر ایک فتویٰ مسٹر جناح کے خلاف ہے، مسلم لیگ کے خلاف ہے، علامہ اقبال محمد علی جناح کے خلاف ہے۔ تو اگر ہے تو ہے، وہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ قائد اعظم کے جو قائد تھے وہ کفریہ تھے، انہوں نے پہلے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہیں، یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کا جو مزاج ہے وہ یورپ والا مزاج ہے، ساری باتیں انہوں نے بیان کی ہیں، اس کے بعد فتویٰ لگایا، ایسے نہیں کہ اٹھ کے فتویٰ لگا دیا، فتویٰ ضرور لگایا۔ یہ صرف آپ مانیں، اس بات کی تسلی رکھیں کہ آپ کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کفر کا فتویٰ ضرور لگایا قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر، وہ کیوں لگایا یہ ایک بحث الگ ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔